Yes, dear. All of you are there. Sir, there, we are here. Yes, Yes, sir. sir. We are here. Okay, dear. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay, बच्चे. Okay. चलो, safety approval plate. What we are talking in addition to the other markings, there is something called CSC plate, which is fixed on one of the doors. Or now, this convention, basically CSC is a convention on safety of containers, which took place in 1972. Now, इस convention का basically purpose क्या था? Now, imagine late 60s, all this containerization just started. These boxes were there, and they realized, IMO realized that this is going to be again the mode of transportation. So the safety, IMO का main aim is the safety. Now, to maintain a high level of safety of human life in the transport and handling of containers by providing acceptable test procedures and related strength requirements. अब आपने जो भी box है, whatever you want to carry the cargo into it, so that should be first of all again like a ship during उसकी construction and after construction test procedures and उसकी strength requirements. And second, to provide uniform international safety regulations equally applicable to all modes of surface transportation. So thereby avoiding the qualification or divergent national regulations. कि हाँ भी international trade है, so every country has to accept कि हाँ भी ठीक है, we all agree to this, these type of boxes, if they are made up like this, they are sealed like this, they can be transported. So it's a big thing. Now, again, amendments which entered 2014, new definition at the beginning of Annex 1, along with consequential amendments to ensure uniform usage of terminology throughout this convention. ये भी नहीं कि कोई अपनी अपनी terminology ले आए, कोई कुछ कर. So uniformity लाना जो था, IMO has done a good thing. Right from the day they started thinking about this, and everything is now made to standardized SI units. ये नहीं कि कोई फीट में बात कर रहा है, कोई इंचेस में बात कर रहा है, नो. Also, safety approval plate, basically it's a permanent non-corrosive fireproof rectangular plate measuring so and so 200 by 100, and the plate should be headed CSC safety approval in letters की height ये होनी चाहिए, and information should be in at least English or French. And क्या information इससे हमें मिलती है, क्या इसके ऊपर होना चाहिए? Basically this is a combined CSC plate, so initially only this, what we call the CSC safety plate, is a part of this much portion, and then slowly came the new things again. Yes, customs also came into picture कि भाई हमारी भी approval चाहिए कि whether these boxes can be used for transportation. So उनके लिए भी पहले ये different plates थी, CSC अलग, customs plate अलग, timber treatment. So then they found there are too many plates. No. So now if you see, you have one combined plate on the container which is serving all the purpose. Now CSC में अगर आप देखें, so I've written all these 1, 2, 3, 4 इनकी explanation I've written here in the next slides, which you will be able to read and understand. So basically यहाँ पे उसने क्या क्या दिया आपका date manufactured. So ये तो आपकी approval है कि किस country में कौन सी BV, कौन सी classification society, उनका अपना number आ जाएगा. When this container manufactured, इसकी of course identification number. Then you have maximum operating gross weight. So you can make out from here यार ये कंटेनर जो है कितना मास ले सकते. अलाउेबल स्टैकिंग वेट फॉर 1.8 G. तो अब यहाँ पे लेटर ऑन वी विल स्टडी दिस, एक कंटेनर के ऊपर आप कितना कंटेनर लोड कर सकते हो बिफोर दिस बॉटम कंटेनर गेट्स डैमेज. सो दिस इज बेसिकली योर अलाउेबल स्टैकिंग weight, and it is given for 1.8 G. Now 1.8 G, out of time there is a confusion, you can explain. It is again when the ship is rolling, pitching, there is an extra additional force coming on it. So it is calculated, normally everything is calculated for 1 G, but here they calculate even it is more than this gravity, 1.8 G of the acceleration due to gravity which is acting. So उसकी according इसकी strength capacity आपको दी होती है. And allowable stacking weight is 192,000 kilograms, 192 tons, means one particular container can take 192 tons on top of it. So उसकी strength है ये. So इसको normally we use it in a stack, that this container is 6 stack loading, 7 stack loading, 8 stack loading. So normally if you divide, say every container say 30 ton का है,
So I can easily say that yes, it is 6 stack loading or 7 stack loading of 30 tons. This is important from the planning side. जब आप कार को planning करोगे, so there is something called stack weight and there is something called allowable stacking weight. So these are two different things. काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन भी है that write short notes or briefly explain what is stack weight. And उसी में हम इसको allowable stacking weight को which is given on the CSC plate that this container can take how much weight on top of it, इसकी strength basically कितनी है. Then again this is the maintenance inspection examination date, racking stresses कितने हैं. तो ये सारी की सारी जो है आपकी टेस्टिंग ड्यूरिंग द अप्रूवल हो जाती है. तो ये आपके सारी उसी चीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन है रिटन विच आई सेंड इट टू यू. Owner number, timber component treatment, of course the timber which is used, the inside of the container उसका base होता है, that is again coated with the thick timber for easy loading and discharging. So container floors are lined with marine grade plywood or bamboo. This part of the plate indicates floors are treated with this medicine so that there is no insect formation. So ये भी international है. Of course nowadays if you see Europe, US and all, they are very particular. Because timber also like ballast can carry different organisms, different type of insects to the different countries. So this is also the requirement. ये भी आपकी timber treatment plate is also affixed there. Maximum operating gross mass, first maintenance examination कब इसकी होनी है. Allowable stacking load for 1.8 G. So G is 1.8 G is the force of gravity we typically experience multiplied by 1.8. So this is explanation. Think if you are going up elevator, you feel heavier. That heaviness is added G force of going up against the gravity. Containers may experience G forces higher than 1 when the ships are going up and down at sea. So this is the reason that these containers are tested even if they experience an extra additional stress due to the going up and down. Custom plate, another plate called custom plate fitted as a part or separate. Now it is combined. So this also approves that this container is fit for the from the custom side also. ये पहले separate थे, अब same आ गई. Now comes the identification. तो ये तो हमने देख लिया कि उसके ऊपर markings क्या हैं. Now comes the how do we identify container on a container ship. Now container ship has got a, it is designed in such a way, you can see these are the wave plans which are made. And if you see the ship looks like this, basically if it is cut open, so you can see this. हर कंटेनर का अपना अपनी एक पोजीशन है, अपना एक सेल है, by which it is you can come to know which container is in which position. Basically तो इसके holes ही हैं, okay, 1 2 3 4 5 holes, but normally we don't say that we have containers number 1 hole, number 2, number 3. Here containers are known by your bay, row and tier. Basically तीन चीज़ें ही चाहिए. एक पर्टिकुलर कंटेनर को आइडेंटिफाई करना है कि यार इस कंटेनर की लोकेशन क्या है. सो व्हाट आई नीड इज़ फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट, कौन सी वे में है. सो ये जो चीज़ें हैं, इफ़ यू काउंट लाइक वन दिस लाइक दिस फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट, दीज आर नोन एज द बेस, एंड देन द रोज आर ट्रांसवर्स वाइज लाइक फ्रॉम सेंटर टू स्टारबोर्ड एंड सेंटर टू पोर्ट. सो आगे से मेरे को पता है दिस इज इन द थर्ड रो और फोर्थ बे, एंड पोर्ट एंड स्टारबोर्ड हाउ मेनी, एंड थर्ड इज द टियर. डेक में है सेकंड टियर, थर्ड टियर, और अंडर द डेक है तब इसके कौन से टियर पे ये कंटेनर है. तो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई सेल ऑफ अ कंटेनर. एंड दिस सर बे नहीं पता लगा. सर बे क्या होती है सर? बे नहीं पता लगा. ओके, लेट मी सी, आई शो यू अनदर sketch. Now you can see the ship. This is the forward part. Now this may be say number 1 hold. आपका यहाँ पे इसके अंदर ये 2 बे हैं. Now if we are loading ship like this, यहाँ पे जितने कंटेनर्स लोड होंगे ना, टीयर वाइज मत जाइए. इसको देखिए कि यस ये एक रो है जिसे कहते हैं, चाहे आप इसे रो कह दीजिए. एक ये रो है, एक ये है, एक ये है, इसे हम बेस कहते हैं. फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट अगर आप देखोगे लाइक दिस, चाहे इसमें अक्रॉस जो है ट्रांसवर्स वाइज नहीं गिनना है, फॉरवर्ड से 1 1 1 1. सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपको एक स्टैक्स दिख रहे हैं, ये जो टीयर्स दिख रहे हैं, इस सबको हम बे कहते हैं. ये 01 03 05 07 09. सो दीज आर द बेस इफ यू काउंट फ्रॉम फॉरवर्ड.
सर पोर्ट साइड में भी मतलब पोर्ट साइड में ऑड नंबर वाले वे होते हैं कि इवन नंबर वाले? बेस बच्चे आगे से, सपोज यू आर सिटिंग इन अ क्लास। हाँ जी सर। अब क्लास में देखिए हो सकता है हमारी 3 रोज हो, एक पोर्ट में है, एक सेंटर में, एक स्टारबोर्ड में है। हाँ जी। अगर आप किसी क्लास को साइड से देखिए, हाँ अपने जी। क्लास को साइड से देखोगे तो जो आपके जो तीनों टेबल हैं आगे के, उन तीनों टेबल को हम बे कहेंगे। दिस इज द फर्स्ट बे। फिर वो पीछे 3 टेबल हैं, उसको हम अच्छा। सेकंड बे कहेंगे। फिर उससे पीछे 3 टेबल है, मैं साइड से देख रहा हूँ क्लासरूम को। सर ये 135 चल रहा है ऑर्डर है, तो सर ये 2610 क्या है? बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। ये 1357 ये बे हो गई फॉरवर्ड टू आफ्ट। या फॉरवर्ड टू आफ्ट इज द बेस। सर जैसे व्हाट ये इज मेरी 2610? सर वो कह रहा है कि 1 2 ये 135 ये तो बे आपने कह दिया जो सीधे सामने से देखा उसने। करेक्ट। ठीक है जी। और सर और ये 2610 क्या है? या वो मैं बताता हूँ आपको। आपने बे पहले समझ ली ना, हैव यू अंडरस्टूड कि बेस। यार जैसे ये आगे हमारे क्लास में टेबल लगे हैं, ये 3 4 5 जितने भी है, नॉर्मली 3 टेबल है हमारे। एक 3 है, यहाँ बंदे बैठे हैं, उसके पीछे 3 टेबल है, उसके पीछे 3 टेबल। उन तीनों को नहीं गिनना, उस पूरी की पूरी रो को हम देखते हैं कि यार एक बे ये है, एक बे ये है, एक बे। नंबरिंग में आपको बाद में बताता हूँ। सर आप सर ऐसे एक देखिए सर, नंबरिंग जैसे हम इवन में क्लास में क्या खड़ा होती हूँ है? सर मैं। सर जैसे मैं क्लास में खड़ा हूँ सर अपनी सामने बिल्कुल ठीक है सर। मेरे सामने जैसे एक सामने वाली रो में 5 बच्चे बैठे हैं लेट्स से सर। ठीक है। करेक्ट के फ्रंट 5 रो में बच्चे बैठे आपके हैं और पास टोटल 5 10 टेबल लगे। और टोटल 10 रो हैं सर। ठीक है, मतलब 5 करेक्ट। 10 15 20 ऐसे हैं। ठीक है सर। अब आप अब इसमें हाँ, से सर सामने से अगर मैं देखूं तो ये इसमें से बे कौन सी है सर? अब आप सामने से नहीं देखना। अब आप हाँ। ये मत समझिए कि आप बोर्ड के ऊपर खड़े हो। अच्छा अब सर आप मैं साइड में चला गया सर। ठीक है, मैं साइड पे आ जाओ। लेफ्ट साइड में चला गया। ठीक है सर। करेक्ट। अब हाँ, लेफ्ट साइड में चला गया तो शुरू से लेके जो बिल्कुल एक्सट्रीम मेरे लेफ्ट से स्टार्ट हो रही होगी फिर उसका बे नंबर क्या होगा? तो अब आपने एक्सट्रीम से अपनी क्लास को गिनना शुरू किया कि हाँ यार आगे में जैसे एक रो ऑफ बेंचेस लगी हुई है, 5 रो ऑफ बेंचेस है। फर्स्ट रो में 5 बच्चे लगे हुए हैं, 5 और बेंचेस 5 लगे रो हुए है। हैं। हाँ जी। उससे पीछे 5 बेंच हैं, इजंट इट? हाँ जी सर। अब जब मैं उनको गिनता हूँ तो पहले जो 5 बेंच हैं उसे हम कहेंगे दैट इज द फर्स्ट बे। सर बेसिकली जिसको मैं रो बोलता हूँ एक नॉर्मल भाषा में देखने में, अगर ये मैं एक रो बोल रहा हूँ ना उसको कि एक रो में 5 बच्चे बैठे हैं और 5 रो हैं मेरी क्लास में तो टोटल 25 बच्चे बैठे हैं। ठीक है करेक्ट। सर। तो जो पहले और 5 आप कह रहे हो कि बेंच उसको हैं। साइड से देख लो। हाँ, जो साइड हाँ। से देख लो जो पहले 5 है वो बे है ना? और इस हिसाब यस। से आपकी 5 बे हैं। यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी राइट। अच्छा ठीक है। अब जो 5 बे, अब जो आपने 5 देख ली कि यार 5 बेंच है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो 5 बेंच कैसे दिख रहे हैं आपको। अब सपोज जैसे ये देखिए, ये जो पूरी की पूरी ये चीज़ दिख रही है आपको, इसको ये ट्रांसवर्स ना गिनिए। देखिए एक ये वाले बेंच की रो आ गई, एक ये रो आ गई, एक इससे आगे रो है। ये तो हम ठीक है पीछे सर। से देख रहे हैं। ठीक है सर। सिमिलरली आगे से हम देखेंगे तो ये सारी रोज आप हम इसे बेस कह देंगे कि यार ये पहली बे ठीक है, है ये सर। दूसरी बे है, ये तीसरी बे है। अब ठीक है इस सर। तीसरी बे में जैसे आपने क्लास में कहा था कि आपके 5 बेंच लगे हुए हैं, यहाँ पे आई थिंक कितने 17 अक्रॉस आई थिंक, या एक 16। मिनट सर। 1 2 3। यार ये नीचे लिखा है 15 एंड 1 16, तो 16 मीन 17। इस चीज को हम कहते हैं रोज। अब इनको रोज को हम कैसे काउंट करेंगे? अब आपको मैं यहाँ ले आता हूँ। नाउ यू सी दिस, यू आर लुकिंग फ्रॉम द सर शिप। यहाँ पे 3 बे हैं। हाँ जी सर, अभी यहाँ पे मुझे 3 बे दिख रही हैं सर। नो नो, ये आपकी, आप सपोज शिप को पीछे से या आगे से फॉरवर्ड से देख रहे हो। सर फॉरवर्ड से अब देख रहा एक हूँ। मिनट में फर्स्ट वाली पिक्चर दिखाता हूँ जहाँ मैंने आपको शिप दिखाया था। आई थिंक यू मे बी एबल टू, लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड हमारी थी जहाँ पे, तो पहले ही ये फोटो। हाँ देखिए, ये ठीक देखिए है ये सर। वाला था ना। ठीक। अब हाँ ये जी जो सर। चीज़ है, अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, यहाँ से खड़े होकर आप देखिए, ये पहली बे, ये दूसरी बे, ये तीसरी बे, ये एंटायर पूरी बे जो हाँ। है, ये हाँ इट्स जी लाइक, सर। ठीक है। ठीक ये है सर। आपकी बे आ गई। हाँ अब जी इस सर। बे में हमारे पास ये जो कंटेनर्स हैं पोर्ट टू स्टार्बर, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 हाँ 6, जी। इसे हाँ हम जी। रो कहते हैं। अच्छा ये रो है। ठीक है। ये रो हो गई। अब चाहे इसे आप इसे पीछे भी ले जाइए कि यार ये वाली रो, इसके पीछे की रो, इसके पीछे की रो, इस तरह ठीक है से जो सर। है बेस। एंड इस तरह से ये रोज बन गई। एंड थर्ड इज द टीयर्स, नीचे से ऊपर आ गए। अच्छा। टीयर तो ठीक है सर। आसान है, आई थिंक टीयर यू कैन अंडरस्टैंड।
हाँ जी, टियर तो चलो सर जितना ऊपर है वो टियर होगा, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, कितने फोर्थ टीयर, ये कितने सब कंटेनर्स हैं। हाँ जी ठीक काफी है। कॉमन होती है सबके साथ। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेस कि यार यहाँ से मैं देख रहा हूँ अब इनकी नंबरिंग कैसे है। जो फर्स्ट बे होगी इसको कहते हैं 1, दीज आर ऑड नंबर्स। 20 फीटर कंटेनर जो है उनकी बेस को 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, अच्छा 15, 17 ऐसे होगी। अच्छा सर, अभी एक और क्वेश्चन सर, अब ये जो बे हैं, अभी ये एक कंटेनर एक शिप में लेट से ये अभी 30 बे हैं फॉर एग्जांपल सर, ठीक है सर। या तो सर इसमें 20 फीट के कंटेनर एक ही बे में रखे जाते हैं या एक बे में 20 फीट भी रखा जाता है, 40 फीट भी रखा जाता है? यस, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। अब जो मैं आपको वो स्केच दिखा रहा था वो आपको ज़्यादा आसानी से समझाएगा कि नाउ आपने बेस समझ ली। अब एक बेस बे में आप 20 फुटर ही रख सकते हैं या 40 फुटर रख सकते हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ इफ़ यू सी दिस, ये वाली पिक्चर, अब ये समझ लिया आपने, ये एक बे थी। नाउ दिस आप साइड से देख रहे हो, दिस इज यू आर लुकिंग एट द शिप फ्रॉम द साइड, जेटी पे खड़े और साइड से देख रहे हो। हाँ अब ये तो आपकी 01 बे, 03, 05, 07, ठीक है सर। 09, 011। अब ठीक है मैं इन दो बेस पे, ये 20 फीटर कंटेनर है, इन दो 20 फीट की जगह मैं एक 40 फीट लोड कर देता हूँ। जैसे ये 40 फीट लोड किया, इट इज़ पॉसिबल। तो आपके जो सॉकेट्स लगे होते हैं वो उसी तरह से होते हैं कि दो 20 फीट कंटेनर की जगह एक 40 फीट लोड हो सकता है। जब मैं 40 फीट लोड करूंगा तो इसका बे नंबर 10 बन जाएगा, इन दोनों का बीच वाला 9, 9, 11। क्यों, मैंने कौन सी बे ऑक्यूपाई की, 9, 9, 11, हाँ जी। तो इसका नंबर आप 10 बन जाएगा। 40 फीट सिमिलरली वाला अगर तो इवन मैं आगे नंबर पे से, आ जाएगा। हाँ जी, 40 फीट वाला इवन नंबर पे आएगा एंड 20 फीट वाले करेक्ट, ऑड नंबर रहेंगे। करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से बनता हूँ 1 और 3, ये दोनों बेस को मैं 20 फीट की बेस है, इसमें मैं 40 फीट लोड करता हूँ तो 2, तो ये 4 के डिफरेंस पे आ जाएंगे। 02, 06, 10, 14, 18, 22, दोज आर द 40 फीट बेस। जैसे मैंने आपको कहा कि दिस कंटेनर इज इन 22, बे नंबर 22, तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा 22 मीन्स 40 फुटर कंटेनर। इफ दिस कंटेनर इज इन बे 11, 1357 किसी में भी है, तो यू कैन मेक आउट दिस इज अ 20 फीट कंटेनर। अच्छा सर। ठीक है, तो अब आप इसी पिक्चर को देखिए विच इज लाइक सॉर्ट ऑफ 3 डायमेंशनल, कि अब मेरा शिप ये फॉरवर्ड पोर्शन है और ये आफ्ट है, हम फॉरवर्ड एंड आफ्ट चले। तो ये तो आपने देख लिया बे थी। अब इसकी जब जो गिनती है वो तो हमने कर दी 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब हम ट्रांसवर्सली जब इसको काउंट करते हैं, फोर्थ टू स्टारबोर्ड जब काउंट करना है, तब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, तब इसकी काउंटिंग जो है वो स्लाइटली अलग हो जाती है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर। यस, रो की जो काउंटिंग है इट विल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर। जैसे ये सेंटर आपका शिप का, दिस इज योर हैच कवर, ये आपकी मेन डेक चल रही है, आप जहाज को पीछे से देख रहे हो। सो दिस इज स्टारबोर्ड साइड वाले जो कंटेनर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, पोर्ट साइड वाले 2, 4, 6, 8। पोर्ट इज इवन नंबर, स्टारबोर्ड साइड विल बी ऑड नंबर्स ट्रांसवर्सली। सो ये नहीं कि पोर्ट से स्टारबोर्ड सेंटर से शुरू होता है। सो कई बार 0, 0 भी हो सकता है। 1, 3, 5, 7 starboard side, 2, 4, 6, 8, 10 on the port side. So these are the row numbering. So rows are numbered from the center, bays are numbered from forward, and similarly if you see the tiers, now tiers are numbered from the bottom. अब अगर आप वही वाली पिक्चर देखिए कि होल्ड के अंदर से हम शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम ऑफ द होल्ड, इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। ये तो आपके डबल बॉटम आ गए, यहाँ से उसने दे दिया। द फर्स्ट टीयर इज 02, 04, 06, 08, 10, 12। इसी तरह ये आपका होल्ड में आ जाएगा। अब आप हैच कवर बंद कीजिए और उसके बाद डेक पे लोड करना शुरू कर दीजिए। डेक पे उनकी नंबरिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। सर टीयर जो अंडर सारी इवन नंबर सी रहती हैं सर टीयर्स? यस, 2, 4, 6, 8, 10। ये क्यों इवन नंबर होती हैं, एनीबॉडी? ओके सर। ये मेरे मन में भी डाउट था यार, ये 2, 4 क्यों कर दिया? टीयर है, नीचे से चला रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दो ना सीधा ही। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व क्यों कर दिया इसको? 2, 4, 6, 10, 11 कीजिए। चलो कंटेनर वाले थोड़ा तो यार आप पार्टिसिपेट कीजिए। चलो आई विल शो यू दिस। ये भी आपने अच्छा पॉइंट आउट किया और वी विल सी इन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कि इसको इसकी ये नंबरिंग जो है 2, 4, 6 क्यों होती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेस क्या है, रोज क्या है, टीयर। अब आपके पास सर मैं वो समझ गया जो आपने बे समझाया।
सर अब जैसे आप कह रहे थे कि साइड से देखो, ठीक है सर। अब सर कोई बंदा अगर साइड से देखेगा तो जितने भी ये 40 फीट के कंटेनर हैं उसको तो एक ही दिखेगा वो यूनिट, राइट सर? या अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को यही हाँ यही वाला हाँ, साइड तो यही एक ही दिखेगा। तो मतलब जो शिप पे बंदे हैं उनको अगर पता है कि बे हमारे पास 50 हैं, जिसमें से 20 बेस पे 40 फुट के कंटेनर खड़े हैं, तो जो 2 बे मतलब एक बन गया, राइट सर? सर जो लेकिन बाहर से देखेगा उसको तो 25 उसको तो 30 ही दिखेंगी ना, उसको तो 40 ही दिखेंगी, क्योंकि या वो जब साइड से देखेगा तो ही कैन काउंट। अगर आप सपोज साइड पे खड़े हो तो आपको साइड व्यू कैसा दिखेगा, जैसा ये हमने यहाँ पे देखा साइड व्यू, साइड से शिप जो ऐसा दिखेगा, इजंट इट? ये नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब था 40 फीट वाला तो उसको तो एक ही कंटेनर दिख रहा है, बट आप अपने कैलकुलेशंस में उस 2 बे को एक ही काउंट कर रहे हो, राइट सर? यस यस, ये देखिए जो 40 फीट है, ये देखो 40 फीट आपको एग्जांपल, अगर ये आई कांट एनलार्ज दिस, डिस्टॉर्ट हो जाता है। कोई बात नहीं सर, अब दिख रहा है सर। या ये 40 फीट देखो इतना बड़ा दिखेगा, 20 फीट छोटा सा दिखेगा। अच्छा तो यहाँ से पता लग जाएगा, ये देखो ये 20 फीट की बे चल रही है, ये पूरा का पूरा, इसे कहते हैं स्टैक। हाँ, ये ये डेक पे उसने दिस स्टैक इज बिलोंगिंग टू, अगर इसकी 40 इसकी मैंने बे काउंट करनी है तो हो सकता है इट मे बी से 28। और यहाँ पे जब मैं इसको देखूंगा तो ये 24 है, तो हो सकता है दिस में भी 21 23, ये 21 होगी, ये 23 होगी, ये 24 आ जाएगी। हाँ, ये और 24 आ मे जाएगी। बी इन दोनों का जो इन दोनों के बीच का नंबर होगा, ये 20, अच्छा सपोज इफ दिस इज 21 23, नेक्स्ट इज 25 27, तो ये 26 हो जाएगी, इनके बीच का नंबर आ जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। तो ये देखो ये 40 फीट बेस है, ये बड़ी बड़ी है, देखो 40 फीट के नीचे भी कई बार उसने 2 20 फीटर लगाए हुए हैं। अब सर 20 फीट दो, एक और क्वेश्चन पूछो सर। अब सर जब इसको लोडिंग करते होंगे या डिस्चार्जिंग करते होंगे, मतलब कैसे पता लगता होगा कि लाइक कितनी रोज कौन सी रो में, मतलब डिफिकल्ट नहीं होता होगा कि डिटेक्ट करना नहीं एक बच्चे, टाइम? अब आपके पास प्लान आ जाएगी। देखो आप एज अ, चाहे आप चीफ ऑफिसर हो चाहे ड्यूटी ऑफिसर, आपके पास ऐसी प्लान बनेगी। ये देखो ये शो कर रहा है बे 53 54 बे 55। अब मेरे हाँ पास ये बे है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्लान। सर, थोड़ा बेटा सा अलग है। आगे चलेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, आगे चलेंगे हम। आई वुड हैव रीच देयर, आना था मैंने। नहीं सर, आप पीछे ले जाओ सर, मैं तो सिर्फ समझने के लिए मतलब। या ये है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब आपने देखना पर्टिकुलर कंटेनर है, सपोज देखिए ये बे 19 है, ये टॉप पे लिखा है 19, ये 21। तो ये अच्छा इंडिविजुअल बे की प्लान है। एक बे अच्छा में 19 नंबर बे में ये अंडर डेक कंटेनर्स हैं, ये ऑन डेक के कंटेनर्स हैं। अच्छा। अब आपको जब लोडिंग करनी है या प्लानिंग करनी है, अब आपके पास था कि आप नॉर्मल शिप पे हो, जैसे आपके पास 6 होल्ड्स हैं, 5 होल्ड या 6 होल्ड्स हैं, तो उसमें आप कैसे प्लानिंग करते हो कि यार इस होल्ड में इतना कार्गो, इसमें इतना, आप लोडिकेटर पे बैठते हो, इजंट इट? हाँ जी अब सर। यहाँ पे भी सेम वे यू हैव 1 2 3 4 5 होल्ड्स। अब इन ईच होल्ड हैज गॉट बेसिकली 240 फीट बेस। ईच 240 होल्ड फीट हैज बेस। गॉट, या 240 फीट कंटेनर्स आप एक होल्ड में लोड कर सकते हो। ओके। ओके। अब जब आपने ये, यहाँ पे पिक्चर थी, ये देखिए ये होल्ड्स लुक लाइक दिस। अब आपका शिप तो वैसा ही दिख रहा है। अब हाँ आगे से काउंट करो, हो सकता है 1 2 3 4 5 होल्ड्स एग्जाम्पल। हाँ हाँ। अब ये आपका एक होल्ड आ गया, ये होल्ड जो है 1 and 1 2, यहाँ तक ये एक होल्ड है, वी कॉल इट 1 होल्ड बट 2 हैचेस। दिस इज 40 फीट बे। 1 ये होल एक विथ 2 हैचेस। 2 हैचेस। तो ये देखो ये जो आपको बल्कहेड दिख रहा है बीच में, ये पार्शियल बल्कहेड है, ये वाटर टाइट बल्कहेड नहीं। देखो इसमें ओपनिंग है बीच में, हाँ जी। ये सेल गाइड लगी हुई है। अच्छा सर। ये जो बल्कहेड होगा ये आपका वाटर टाइट ट्रांसवर्स बल्कहेड होगा पूरा, एंड इसी के साथ ये जो पीछे ये बल्कहेड होगा ये भी कंप्लीट वाटर टाइट ट्रांसवर्स बल्कहेड होगा। ये बीच में जो है ये बल्कहेड आप देखिए, ये वॉकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके। तो बेसिकली हुआ क्या आपका, एग्जांपल ये जहां मेरा कर्सर है, ये आपका एक होल्ड हो गया, एग्जांपल मे बी नंबर 3 होल्ड, बट इट हैज गॉट टू बेसिकली डिफरेंट, टू वन वर्टिकल इसमें वो है, डिवीजन है 240 इसमें। फीट बेस, इट हैज गॉट 240 फीट बेस। अब ये आपकी सेल गाइड लगी हुई, सेल गाइड क्या है, बेसिकली थिक एंगल्स हैं, अच्छा सर। हीट के थिक एंगल्स लगे हुए इस बल्कहेड पे भी एंड इस बल्कहेड पे भी, आगे वाले पे भी। अब ये जो कंटेनर लेके आया है, अब जैसे ये 220 फीट के एग्जांपल हैं, ये 220 फीट के कंटेनर हैं, तो ये अब इसके इन एंगल्स के बीच में डालेगा। यहाँ ऊपर से ये जो एंगल्स हैं थोड़े वाइड होते हैं, उसे कहते हैं एलिफेंट ईयर।
अच्छा सर। तो यहाँ से इसने इसमें फिट करना है यहाँ से, and फिर ये इसको ऑटोमेटिकली स्लाइड होता हुआ नीचे चला जाएगा। ये कंटेनर फिर पोर्ट स्टार्बोर्ड कहीं नहीं शिफ्ट नहीं हो सकता। ये देखो ये नीचे, अच्छा सर ठीक है। अच्छा ये सर, स्लाइडिंग बार सा बनाया हुआ कि बीच में फंसा देंगे और वो स्लाइड होता हुआ नीचे चला जाएगा और फिक्स बैठ जाएगा पॉइंट पे जाकर, ये राइट? ये देखिए, ये इसे कहते हैं सेल गाइड। इस तरह से फिट हो जाएगा। चलो ये तो 20 फीट है, ये पिक्चर आपको क्लियर दिखती है। दिस इज है क्या है, होल्ड। ये सिर्फ होल्ड ही है होल्ड सर। उसने बल्कहेड लगा के उसके ऊपर ये एंगल फिट कर दिए, वेल्ड कर दिए। अच्छा ठीक है सर। कंटेनर एक पोर्शन उसका इसके बीच में जाएगा, आगे वाला पोर्शन यहाँ पे। तो उसने इसको एम करना और यहाँ से इसने इसको स्लाइड करके, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली कंटेनर नहीं है, आपको कंटेनर ऐसा फिट होता हुआ दिखेगा। अच्छा सर, एक और बात। अब सर आप इसमें जैसे ये फिट करते होंगे सर, ये जो दो कंटेनर है इसके बीच में कुछ स्पेसिंग रहती है या ये जुड़े होते हैं, लाइक टोटल इंटैक्टेड होते हैं एक दूसरे से? नो, ये देखिए अब इसने 20 फुटर उठाए हुए हैं, तो अगर ये 20 फुटर है तो इनके बीच में स्पेसिंग नहीं होगी। तो नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आपका हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो काफ़ी कुछ पीछे का रह जाएगा। जब आई अच्छा कम टू द लोडिंग एंड सिक्योरिंग अंडर डेक, तब हम इसको, ठीक है। अच्छा तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए थी कि ये बे रो टियर जो है कैसा आपको दिखता है। हाँ ठीक है सर। चेक में इनकी जो नंबरिंग है वो 82, 84, 86, 88, 90 ऐसे चली जाती है। ओके। अब ये चेंज होने वाली है, बिकॉज नाउ द शिप्स आर डिजाइन टू लोड मोर एंड मोर हाई कंटेनर्स ऑन डेक। पहले तो 2 थे, 3 थे, 4, अब 6, 7, 8, 9, 10। वो कहता भी है अगर ये तो 100 तक पहुंच गया तो अब हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। सो दे आर प्लानिंग कि इसकी नंबरिंग भी चेंज। सर आजकल 72 से शुरू करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ज्यादा हो जाता है ना, टियर ज्यादा हो जाते हैं। 8-9 टियर है, 14,000 20,000 टीयू पे, तो 72 से शुरू करते हैं। या 70 से शुरू हो गया उन्होंने, बिकॉज जब उन्होंने बनाए थे, जब ये टर्मिनोलॉजी दी थी देना है, रियलाइज की यार डेक के ऊपर भी इतना 10 हाई कंटेनर। नाउ इमेजिन दिस, इवन 8 हाई भी आप देखिए, आपके हैच कवर के ऊपर ये 8 कंटेनर्स, 8.5 फीट, 9.5 फीट के 8 कंटेनर। हाउ मच लोड इज कमिंग ऑन योर हैच कवर्स एंड इनकी सिक्योरिंग। एंड यू सी इट्स अगेन अ वर्क ऑफ जीनियस। नेवल आर्क जो है कैसे इसकी डिज़ाइन बना रहे हैं, कैसे उसको टेस्ट करते हैं, कैसे उसको कर रहे हैं। सो फ्यूचर इज चेंजिंग। अब इमेजिन इसको हम कंपेयर कीजिए जब जनरल कार्गो शिप से, जिसके ऊपर हैच कवर के ऊपर अगर एक कंटेनर भी रख दिया तो कहते तो हो बड़ा भारी डेक कार्गो आ गया। इवन 1 कंटेनर को सिक्योरिंग यूज टू बी अ बिग इशू। नीचे डनेज रखो, फिर इतनी वायर्स लगाओ, एंड नाउ यू आर लोडिंग दीज बॉक्सेस लाइक मैच बॉक्सेस विद इन नो टाइम। सो दिस इज बेसिकली योर बे रो टियर, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर कंटेनर्स कि यार कौन से सेल पे है। अब आपकी आ जाएगी, जैसे हमने देखा है कि कार्गो प्लान, तो ये तो आपने फैमिलियराइजेशन होगी कि होल्ड्स कैसे दिखते हैं, एंड दिस इज हाउ द कार्गो प्लान ऑफ अ वन पर्टिकुलर बे लुक्स। कभी कभी आपको ये भी आ सकता है कि ओके हाउ द कार्गो प्लान ऑफ अ कंटेनर शिप लुक्स लाइक दिस। तो बनानी इज नॉट डिफिकल्ट, इज जस्ट द स्केयर्स बनाने हैं। ये जो आपको खाली दिखा है, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैनॉट लोड कंटेनर। क्यों कि शिप जो ऐसा? है फॉरवर्ड एंड आफ्टर अगर आप देखिए तो कर्व करता है, isn't it? यस सर। तो ये जो कर्व करता है तो वहाँ पे तो ये बॉक्स नहीं आ सकता। तो वहाँ पे आपने, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था सर एक one इमेज of the था वो पीछे वाला, हाँ जी, उसमें नहीं थे। क्या, ये जो चीज़ है इसको आप बैलास्ट टैंक बना देते हो बेसिकली, बिकॉज द शिप इज एक्चुअली कर्विंग हियर डाउन बिलो, तो कंटेनर फिट नहीं होगा। तो ये आपका बेसिकली साइड टैंक में आ जाता है, विच इज़ बेसिकली अ बैलास्ट टैंक। अब इसके ऊपर आपका दूसरा कंटेनर हो आराम से फिट हो जाएगा। सो नॉर्मली एट द एंड्स मे बी 1 और 2 होल्ड, एंड पीछे वाला जो एक्सट्रीम वाला 5-6 होल्ड्स हैं उनमें ये चीज़ें आपको बनी हुई दिखेंगी, दिस एक्स्ट्रा बैलास्ट टैंक्स टू जस्ट टू लेवल मेक द होल्ड लेवल सो दैट यू कैन लोड। सो आपकी कार्गो प्लान में व्हेन यू सी दिस प्लान कि अगर ये चीज़ है दैट मीन्स यहाँ पे कंटेनर लोड नहीं हो सकता। रेस्ट इज सिंपल कि आपने डाल दिया, कलर कोडिंग होती है आपके कंप्यूटर पे, ये है यू कम टू लोड पोर्ट और डिस्पोर्ट, सो यू नो कि हाँ भाई टोक्यो येलो कंटेनर्स हैं, यू अराइव्ड इन टोक्यो, सो यू नो येलो कंटेनर सारे डिस्चार्ज करने हैं। और सारा का सारा डिटेल आ जाता है। IMDG के ऊपर क्लास लिखी होती है, रीफर के ऊपर R है, एम्प्टी के ऊपर E लिखा हुआ है। तो जिन्होंने नहीं भी किया, ऑफ कोर्स जिन्होंने कंटेनर शिप किए दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो क्या क्या है, बट जिन्होंने नहीं भी किए आपके लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत है कि अगर मेरे को कार्गो प्लान बनानी भी है, हर बे की अलग अलग होती है।
या फिर आपको सारी बेस की एक A4 शीट पे चाहिए तो वो भी बन जाती है। वो छोटी छोटी सी हर एक शीट पे ही सारी बेस आपको दिखा देगा। दैट्स अ जनरल प्लान। डीजी प्लान बनानी है वो भी निकल जाएगी कि उस पर सिर्फ वो आपकी ऐसे प्लान दिखेगी, सिर्फ डीजी कंटेनर दिखेंगे, जैसे जो डीजी है 3.2 6.26, सो वहाँ पे सिर्फ डीजी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इफ़ आई वांट टू नो पर्टिकुलर क्लास ऑफ डीजी मैंने कहाँ लोड किया है, कहाँ कहाँ पे है, तो ये बाकी कंटेनर सारे डिलीट हो जाएंगे, उसमें सिर्फ आपको डीजी के कंटेनर दिखेंगे, विच नॉर्मली वी टेक आउट एंड पुट इट इन आर फायर वैलेट्स और नोटिस बोर्ड पे भी यहाँ पे डीजी कार्गो है। सो ऑल ऑफ यू बी केयरफुल। तो ये आपकी प्लानिंग। हाँ सर जी। एक लास्ट क्वेश्चन सर जो लोग जैसे डेक पे चलते हैं, जो डेक का एरिया होता होगा ना इसमें, लाइक फुल जो शिप पे चलने के लिए, तो सर ये डेक पे लाइक मार्किंग्स रहती हैं कि ये बे नंबर ये वाली है, ये वाली यस है, यस ये वाली है, यस यस मार्किंग यस रहती यस। होंगी, नहीं तो हर बार काउंट करते रहेंगे? नो नो, परमानेंट बच्चे, दीज आर एम्बॉस्ड। वेल्डिंग ओके के साथ परमानेंट बनाया है, उसको हम कलर पेंट करके रखते हैं। गैंट्री वाले ने भी ऊपर से देखना है, साइड से भी दिखता है, सब चीज़ आपको आराम से दिखती है। आजकल तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी है, पूरा वेल्डिंग से उसका बना देते हैं मार्किंग, फिर उसके ऊपर पेंट कर दीजिए। यू डोंट हैव टू टेक स्टेंसिल, एंड पुराना ज़माना गया कि स्टेंसिल के साथ करते रहो। नो, कॉमिंग के ऊपर भी आपकी जो हैच कॉमिंग है ना, साइड पे जो फ्लैट प्लेट है उसके ऊपर मार्किंग रहेगी। तो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द मेन डेक, आपको पता है आप कौन सी वे के पास हैं। चलो ये तो था ठीक। अब आपका आ गया टाइप ऑफ कंटेनर्स ब्रीफली। आजकल कंटेनर्स शिप्स जो हैं, कंटेनर्स आर डिज़ाइन एंड दे आर गोइंग टू टेक ओवर ऑल टाइप ऑफ शिप्स, जिसमें उसने कहा है कि कोई भी कार्गो ये कैरी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव कंटेनर्स फॉर एवरी ट्रेड, फॉर एवरी कार्गो। चाहे वो लाइव स्टॉक कैरी करना है, चाहे जिराफ कैरी करने हैं, चाहे मशीनरी कैरी करनी है, कार्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स, even bulk and liquids, anything you want to carry, you have a container for this. So first of all we have general purpose container, which is totally enclosed, weatherproof, rigid roof, rigid side walls, rigid end walls, and at least one of which is equipped with doors and a floor. And this type of general purpose container is intended to be suitable for transport of cargo in greatest possible variety. इसके ऊपर general purpose container having an opening roof may be used for same specific purpose as open top containers. So ये आपका GP container जिसे हम कहते हैं, you have the door, ये आपकी wooden flooring है, so you can with the forklift they stuff the container or they load the container, and they make sure nowadays lot of training is given ashore also to people कि भाई इसके अंदर जो कार्गो लोड करना है उसकी सिक्योरिंग भी आपने देखनी है। On the ship we know nothing, what is inside the container we don't know, how it is secured we also don't know. So these shore people who do the stuffing of containers, so they do a very well prepared things. आप example rice in bags, bags की securing तो you can imagine, जैसे हम ट्रक के ऊपर लोडिंग करते हैं, यहाँ पे यू कैन फिल अप दिस बैग्स, अंदर आप डाल दीजिए एंड जस्ट पिक अप द बॉक्स, 30 टन 32 टन आराम से आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो दिस इज योर जीपी कंटेनर स्पेसिफिक पर्पस। हाँ जी, ठीक है सर, कोई बात नहीं। एंड देन अगेन क्लोजिंग सीलिंग, सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। जहाँ तक वन ऑफ यू मेंशन वेरी नाइसली कि एक तो हमें अब शिप्स ऑफिसर्स के लिए या शिप के बंदों के लिए हमें क्या आसानी हुई कंटेनराइजेशन होने से, यार एक तो पिलफरेज का पंगा नहीं, कार्गो डैमेज का पंगा कम है। ऑफ कोर्स वेरी रेयर व्हेन द कंटेनर गेट्स डैमेज और ब्रोकन, वो अलग केस है इफ इट्स नॉट प्रॉपरली लोडेड, बट अदरवाइज नहीं तो इफ़ यू इमेजिन जनरल कार्गो शिप आपने लोड करना है, क्रेन से आपने एक बॉक्स को, मशीनरी केस को, किसी को भी आपने उठाया तो 3600 डर रहता था कभी टूट जाएगा, कुछ हुआ, कहीं ना कहीं उसका पार्ट टूटा। और इनको उठाना, लोड डिस्चार्जिंग इज़ वेरी इजी। सर राइस के लिए तो सर पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, These containers they are weather वेंटिलेशन, लाइक पानी से जैसे yes, अपने yes. कार्गो टैंक्स में होता है स्वेट वगैरह का प्रॉब्लम, तो इनमें सर There is possible, yes, there are ventilation, there are ventilator ducts also. If you see, there are containers which have got a ventilator duct. ये देखिए, closed ventilated ones. So closed without ventilation भी हैं, the containers with ventilation भी हैं। अब इसमें बारिश भी होगी तो पानी इसके अंदर नहीं जा सकता, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। देखिए यहाँ से एयर एक्सचेंज होती रहेगी,
This is also possible. So that's why these are called ventilated ones. So I'll come to that. तो ये तो हमारे जनरल पर्पस स्पेसिफिक पर्पस कंटेनर्स और जो हैं दे आर मेड लाइक ओपन टॉप प्लेटफॉर्म टाइप प्लेटफॉर्म बेस्ड फॉर एनी टाइप ऑफ कार्गो दीज कंटेनर्स आर मेड क्लोज्ड वेंटेड और वेंटिलेटेड कंटेनर्स ऑफ कोर्स जिस पर्पस के लिए आपको चाहिए आप उसी तरह का कंटेनर मंगाओगे उसको स्टफ करोगे। ओपन टॉप कई बार है कि डोर से मेरी आइटम नहीं जाती, समथिंग इज देयर, समटाइम यू लोड अ मशीनरी लाइक अ जनरेटर, अब उसका एग्जॉस्ट पाइप है वो बाहर जा रहा है तो वी विल आस्क फॉर द ओपन टॉप कंटेनर। अब ओपन टॉप में समटाइम यू लोड इवन हैवी कार्गो, मे बी ग्रेनाइट ब्लॉक्स, मार्बल ब्लॉक्स विच कैनॉट गो थ्रू द डोर, तो क्रेन जो है इसको ऊपर से ऑफ कोर्स इन वायर्स को समटाइम दे आर देयर समटाइम नॉट, बट ओपन टॉप में हम कार्गो ऐसा डालते हैं जो डैमेज ना होने वाला, डेक पे भी रख सकते हैं, अंडर डेक भी रख सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम है फिर इसके ऊपर दूसरा कंटेनर हम लोड नहीं कर सकते। तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ठीक है कॉस्ट है, इट इज कॉस्टली, ये नहीं कि एवरीथिंग इज फ्री, सो एवरीथिंग कॉस्ट मनी, बट एटलीस्ट कन्वीनियंस आपके पास आ गई। सो वेरी कॉमन इज ओपन टॉप, आपको क्वेश्चन आ जाता है ओपन टॉप कंटेनर सिमिलर टू अ जीपी एक्सेप्ट इट हैज नो रिजिड रूफ, फ्लेक्सिबल मूवेबल कवर आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। फ्लैट ट्रैक, इमेजिन आपने अपनी कार इसके अंदर कार को ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कार की जो या ट्रक या कुछ भी आपने मशीनरी विच इज़ एक्सटेंडिंग जिसकी ब्रेड्थ ज़्यादा है, तो वी टेक दिस टाइप ऑफ फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स, इसके ऊपर आप उसको सिक्योर कर दोगे, एक्सटेंड होने दीजिए कोई बात नहीं, इधर भी एक्सटेंड होने दीजिए, बाहर भी होने दीजिए, ऊपर भी एक्सटेंड होने दीजिए। अब एज अ चीफ ऑफिसर व्हेन यू आर प्लानिंग, या आपके पास प्लान आएगा आप चेक कर लोगे कि हाँ यार ये फ्लैट ट्रैक है एक्सटेंड कर रहा है, इसका साइड का स्लॉट खाली रख देंगे, ठीक है। फ्रेट वाइज ही मे हैव टू पे, बट आपकी मशीनरी एवरीथिंग विल गो वेरी नाइसली। तो यहाँ से उसने उठाना है, इसी 4 सॉकेट से गैंट्री ने उठाना है उसी तरह से, they can load this. So these are flat track, can be used for any purpose. Platform containers again for any type of machinery, any type of goods. Thermal containers जिसे आजकल हम रीफर कहते हैं, तो शुरू में ये थर्मल बने, देवर इंसुलेटेड कि चलो यार टेम्परेचर चेंज ना हो, यू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द होल्ड, सो यू रिमेन दिस, बट फेलियर, अब इसको रिप्लेस कर दिया उसने, मशीन भी इंटीग्रेटेड पार्ट बना दिया, एक कंटेनर है उसके साथ ही उसने आपकी रीफर मशीनरी भी साथ ही फिक्स कर दी, ओनली इसको पावर देनी है आप, यू जस्ट अटैच द केबल एंड दिस इज टोटली अ रीफर चैम्बर, कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आजकल इसका सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी का ही है जिसने रीफर शिप्स ख़त्म कर दी। पहले ऑल द रीफर, चाहे फ्रूट्स हो चाहे मीट हो, कुछ भी है, सब कुछ रीफर शिप्स में जाता, उनकी अलग प्रॉब्लम। So reefer containers today, of course, इनकी अपनी प्रॉब्लम है। When you carry the guys who are working on these container ships, they only know कि reefers की क्या प्रॉब्लम है। Very sensitive, expensive cargo। सर इधर एक क्वेश्चन पूछा। हाँ जी। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में कंटेनर के जो कोड वगैरह बताए थे, उसमें लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे आपने 4 डिजिट कोड बताया था, 45 कॉल फॉर 1, इस कंटेनर में तो वो नंबर दिख ही नहीं रहा सर। अमित जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टूड दैट यू आर सेइंग द कंटेनर नंबर। नहीं बच्चों, कहीं ना कहीं साइड पे लिखा होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे इसमें नहीं है, बेसिकली ये तो एक इमेज है, बट नॉर्मली इट एवरीथिंग इज सेम, इसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है, सेम इसका नेम, CSC प्लेट, एवरीथिंग विल बी देयर, एक्सेप्ट इसके यहाँ पे उसने इसको मशीनरी जो है इसके साथ अटैच कर दी हुई है, दैट्स ऑल, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल सेम। इसकी डायमेंशंस भी सेम है, 40 फीटर, नॉर्मली रीफर शिप्स आर 40 फीटर, 20 फीट में भी है छोटे रीफर्स में, नॉर्मली रीफर नोबडी यूजेस बिकॉज इट ऑक्यूपाइज, मशीनरी ऑक्यूपाइज अ स्पेस, सो 40 फीट में ही आपके ये रीफर जो है चलेंगे। एंड इसकी भी नंबरिंग वैसी ही है जैसे नॉर्मल कंटेनर्स की है, चेक डिजिट एवरीथिंग इज सेम, CSC, वेट, इंस्पेक्शन, चेकिंग, सब कुछ है, बट दिस कंटेनर इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अ जनरल पर्पस कंटेनर, बिकॉज इसके अंदर आप देखिए कितनी तो मशीनरी लगी हुई, उसकी कॉस्ट, प्लस इसकी जो वॉल्स हैं ये थिंग है, ये सारी इंसुलेटेड है,
दे आर नॉट लाइक नॉर्मल साइड वॉल्स कि हाँ जी कोरुगेटेड शीट लगा दी, नो दे आर टोटली इंसुलेटेड। इसके ऊपर जो रूफ है वो भी इंसुलेटेड होगी। आपने कार्गो कैरी करना है -26 डिग्री पे, -26 ही मेंटेन करेगा ये। तो ये रीफर कंटेनर भी एक्सपेंसिव है, कार्गो भी एक्सपेंसिव है, इसके लिए इसका फ्रेट भी ज़्यादा। So today average ships are carrying 1200-1500 reefers on a ship। जान निकल जाती है चीफ ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर, क्रू की सब इंस्पेक्शन चेकिंग में। क्यों, क्या कहते हो? सर ये नहीं होने चाहिए लोड, ड्यूटी अफसर को परेशान करते हैं सिर्फ। अब व्हाट उसका अबाउट ईटीओ सर? ईटीओ को नहीं करते सर परेशान? ना ना, पति साहब तो ईटीओ को तो रहती है। पैसे मिलते हैं ना, ड्यूटी अफसर को हाँ? कुछ नहीं मिलता। नहीं आज नहीं, पहले था, शुरू में था जब आपने रीफर कनेक्शन के भी थे कि रीफर कनेक्ट करोगे तो $5 फॉर एवरी रीफर। तो सब सर बंद क्रू कर को दिया। भी मिलते हैं, क्रू को 32 साहब को मिलते हैं, ऑफिसर्स के बंद कर दिए हैं। नहीं बच्चे नहीं, आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनी किसी को भी नहीं है। नहीं सर, हमारी कंपनी में क्रू है, 32 साहब को भी है कभी कभार, अगर थोड़ा कैप्टन की ज्यादा चार्ट लेता है तो। मे बी बट इट इज़, अभी हमें भी गुस्सा आता था जब हमने भी सुना कि हमने भी नहीं मिले कि हाँ यार पहले ऐसे थे कि एक रीफर को कनेक्ट करने के $5, तब तो सब भाग के जाते थे चाहे रात हो चाहे दिन हो। नो, बट अब नहीं है। अब ये चलो किसी किसी में हो सकता है, बट दैट इज़ अ इंसेंटिव, होना भी चाहिए मेरी तरफ से। अगर आप मेरे को पूछिए, इट इज़ हार्डली एनी मनी, बट उसके बच्चे कंसिक्वेंसेस बहुत अलग हैं, क्योंकि फिर वो आपस में कुछ हो जाता है, शुरू हो जाता है कि हाँ जी वाई ओनली डेक वालों को मिलते हैं, इंजन वाले, फिर वो सारे के सारे ये सारे जो ये झगड़ा शुरू हुआ ना, इस करके सब कुछ बंद हुआ है। अदरवाइज पहले था, इवन पायलट एज के लिए आई हैव गॉट फॉर। नहीं सर, इसमें सर इंजन वाले को ज़्यादा दिक्कत है तो चेंज करके फिर डेक पे आ जाए। ये तो बच्चे ऐसा वेरी लॉन्ग डिस्कशन कहता रहा हूँ कि आई होप आप इसको जितना कम रखो उतना ही अच्छा है। तो वी हैव ऑल्सो, आई मीन इट्स अ नॉर्मल लाइफ, बट जितना प्यार मोहब्बत से रह सकें, बट मनी वाइज इट इज़ क्वाइट अ लॉट। सो इसके लिए आई थिंक ये सारा सिस्टम इसलिए बंद हुआ, नॉट दैट कंपनीज आर रिच पीपल है, शिप ओनर्स आर रिच पीपल, दे अर्न इनफ मनी एज लॉन्ग एज देयर इज, as long as you deliver the goods in a right way, the ship owner is very happy and he doesn't want to part with few $1,000. Is nothing, is absolutely, जैसे कहते हैं peanuts for the ship owner। but अगर उस peanuts को $1,000 या $10,000 देने से कुछ और आपस में क्रिएट होता है, then nobody mind, जैसे नहीं यार। so otherwise ships, everything is on the big scale, so even money is also on the big scale। so इसके लिए है कि yes, आपके reefers। now another type is you see these tank containers। इनका भी आपका जो frame है, it is absolutely same, all the modes of transportation can be used, loading, discharging same, and inside he has fitted a tank जिसके अंदर आप liquid cargo carry कर सकते हो, precautions उसकी भी haulage and all these things। so you can imagine kerosene, diesel, anything you can carry। सर ये कितनी क्वांटिटी के होते हैं, लाइक ये वाले जो कंटेनर्स हैं, ये कितनी क्वांटिटी, लाइक 20 टन 40 टन 20 फुट 40 फुट और 20 टन ले लेगा। 40 फुट जो है, अच्छा इतना ही है। ग्रॉस वेट उसका भी 33 ओके टन्स। ओके। I used to carry, I was on meat trade from South America, Europe, so we used to carry reefer containers 30 tons of beef, processed beef। South America से चलता है, it's lot of meat trade from South America to Europe, Persian Gulf, everywhere it comes। You can imagine the cost। Sometimes I used to wonder, आपने भी थोड़ा बहुत कभी प्रोविजंस की लिस्टिंग देखी होगी। Any meat, if you say any meat, if you don't fish or meat and all that, how expensive it is। सर सबसे ज़्यादा महंगा मीट ही है सर। Yeah, processed beef is very expensive। I mean, beef is very expensive। High quality beef जो Persian Gulf वगैरह ये जो these people import from South America, special type of animals को specially बड़ी condition में grow up किया जाता है। Few crores each container has got few crores cargo inside। so you can imagine थोड़ी सी भी negligence हुई उसका temperature, तभी आप देखिए company, everyone, we have to be careful। why a company has to tell, I feel it's my job यार, ठीक है मैंने इसको डिलीवर करना है, -20 21 डिग्री या 26 पे इसको कैरी कर रहा हूँ फ्रोजन स्टेट में। थोड़ा सा टेम्परेचर खराब हुआ, कार्गो खराब हुआ, दे वॉन्ट एक्सेप्ट, दे विल से इसको वापस भी लेके जाओ आप। पर्शियन गल्फ तो व्हेन दे पे, ऑफ कोर्स दे पे हैवी कॉस्ट,
दे वोंट लेट यू डिस्चार्ज ऑल्सो. अगर कार्गो इज नॉट ओके वो कहेंगे आप ही लेके जाओ वापस इसे. So dry bulk also, there are dry bulk containers also, you can carry the bulk cargo also. ऊपर से आपके typical जैसे आपने tankers देखे होंगे, manhole है ऊपर से, you can fill up anything in bulk and discharge also. Named cargo containers. अब आपका ये आया, today I will, कुछ टाइम भी हो गया. Now you see these containers आपको height में छोटे दिख रहे हैं. This is called half height containers. अब इनका जो थ्योरी थी, अब आपने कहा था कि आपके जो कंटेनर्स की जो नंबरिंग है वो 2, 4, 6, 8 क्यों होती है. अब ये हाफ हाइट कंटेनर्स क्यों आए. अनदर काइंड ऑफ शिपिंग कंटेनर्स, हाफ हाइट, मोस्टली ऑफ स्टील. दिस इज बेसिकली, इनका ट्रेड शुरू हुआ था कि व्हेन यू आर कैरिंग हैवी कार्गो, स्टील प्लेट्स, अगर आप होल्ड में भी कैरी कीजिए तो आपकी लोड डेंसिटी जो थी, हो सकता है 2 मीटर आपने कार्गो लोड किया, लोड डेंसिटी खत्म हो गई. लाइक स्टील कॉइल्स, पूरा का पूरा होल्ड खाली है. तो कंटेनर्स में भी वही चीज़ है. कंटेनर इज ऑल्सो लाइक अ होल्ड. आपने इसके अंदर स्टील प्लेट डाल दी, इसने भी 2 या 3 फीट की स्पेस ली, इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, ऊपर कंटेनर पूरा खाली है 6 फीट. उसके ऊपर आपने फिर दूसरा कंटेनर रख दिया जिसने 2 फीट की स्पेस ली, फिर 6 फीट की हाइट खाली. एक तो स्पेस वेस्ट हुई, एक स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट हुआ. तो दे फाउंड किया रही है 8 फीट जो है, 8.5 फीट के कंटेनर है, उसको आधा कर दीजिए, बिकॉज इसमें कार्गो तो इतनी ही स्पेस ले रहा है. सो दीज यू आर कॉल्ड द हाफ हाइट कंटेनर्स. बाकी सब सेम था, खाली इनकी हाइट जो थी वो 4 फीट 3 इंचेस कर दी या 4 फीट कर दी. अब इस कंटेनर को जब लोड करना है आपने, तो यार इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे. सो सपोज अगर आपने इसको अंडर डेक लोड करना है, इसीलिए सारे जो आपकी टीयर की नंबरिंग है इवनली आ गई. अगर ये हाफ हाइट आता है तो उसको ऑड नंबर मिल जाएगा. 2 और 4 के बीच में अगर आपने ये किया तो उसको 03 टीयर मिल जाएगा. 03 मीन्स 05 मीन्स इट इज़ अ हाफ हाइट कंटेनर इन बिटवीन. बट इसका भी ट्रेड अभी ख़त्म, ये भी आउट ऑफ मार्केट. नहीं सर, नहीं, बट सर नंबर 1 कार्गो तो आया नहीं ना. नंबर 1 पे सबसे पहले ये जाता होगा अगर नीचे लोड ये करेंगे भी तो. लोड कर सकते हैं. सपोज आपने ये हाफ हाइट किया तो इसको 01 मिल जाएगा. उसके ऊपर आपने नॉर्मल कंटेनर लोड किया, हाँ, तो वो 02 बीच में आया तो 03. 0246 आपको पता है नॉर्मल कंटेनर है. अगर 135 वाला अगर नंबर आता है, दैट मीन्स इट इज हाफ हाइट इन बिटवीन. तो ये आपकी दिस वाज द बेसिकली रीजन फॉर गिविंग देम 2, 4, 6, 8 एंड 82, 84, 86 और आई मीन इवन नंबर्स कि हाफ हाइट को एडजस्ट करने के लिए. बट आई डोंट थिंक, आई हैव आल्सो नॉट सीन, शुरू में थे हाफ हाइट, बट अभी तो नहीं. अब तो खाली हम व्हाट वी सी इज ऑल योर स्टैक, दिस क्या कहते हैं उसको, गियर बॉक्सेस, वही छोटे छोटे हमारे पास रहते हैं. बाकी तो सारे फुल साइज कंटेनर्स हैं. कार कैरियर्स, नाउ यू सी दिस कंटेनर्स, दे आर डिजाइन लाइक दिस. आपकी कार्स भी ऐसे, दे कैन स्टोर and very easily you can carry these cars into the containers. So every type of container is made for suiting all types of cargos. So this is your closed box, what we have seen before. Little bit of few pictures. Side openings also, you have the containers, not only the doors open from this thing. Sometimes you want to load a wider cargo which cannot pass from these doors, तो साइड डोर्स वाले भी हैं. क्लोज्ड बॉक्स कंटेनर विद साइड डोर्स. दिस डिपेंड्स ऑन द ट्रेड. जैसा ट्रेड है वैसे कंटेनर मैन्युफैक्चर होने शुरू हो जाते हैं. एंड शिपिंग कंपनी जो बिगर शिपिंग, दिस इज योर ओपन टॉप. यहाँ ऊपर कैनवस टाइप का कवर डाल देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं. बट दिस इज नॉर्मली जो कार्गो आपने डैमेज ना हो उसको हम ओपन टॉप में ले जाते हैं. रीफर्स हमने देख लिए, ये भी देख लिया. Platform type. Anybody seen now this platform? Has anybody seen locomotives being carried in your container ships? वहाँ पे ये platform use होते हैं. I will show you. I sometimes forget. I want to show you. उसका भी एक question है. How do you secure locomotives? And I'll show you how locomotives carried on these containers inside. सेल गाइड्स के अंदर कैसे लोकोमोटिव इन प्लेटफॉर्म से कैरी की गई. सर, हाँ जी. अब जो आपने सर आज हमें पढ़ाया इसके रिगार्डिंग कोई कैसा आता है, लाइक क्वेश्चन कैसा आता है इस पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स? यस, वो भी आ सकता है. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स एंड
Sometime he says okay explain open type और reefer containers. कम क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको आएंगे मैक्सिमम टाइम कंटेन आपके लिए जो क्वेश्चन है ये तो एक किस्म की आपकी फैमिलियराइजेशन है. अब जो आपका आएगा कार्गो वर्क कि यस व्हाट ऑल फैक्टर्स यू विल टेक इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग अ स्टोरेज प्लान. ये आता है सर इस पे. यस सो आपके लेवल पे फेज 1 नाउ यू आर चीफ ऑफिसर्स लेवल, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा कि ये तो अब आपने सब देख लिया, नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड कि यार उसके ऊपर मार्किंग्स क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, सेल्स क्या हैं, कैसे होता है, होल्ड्स कैसे दिखते हैं. अब मेन काम आएगा जिसे मैं कह रहा हूँ कार्गो वर्क. आई विल नॉट स्टार्ट टुडे, आई थिंक यार वी हैव लेस टाइम, ओनली 10 मिनट्स, सो आई विल स्टार्ट कल नेक्स्ट टाइम कर लेना सर. कल अब आपका ये अब आपका स्टैंडर्ड का काम अब शुरू होगा यहाँ से. अच्छा सर. अब मैंने अगर चीफ ऑफिसर हूँ, मैं थोड़ा सा 10 मिनट है जस्ट ब्रीफ यू, ये जो हमारा ट्रेड है, ये कंटेनर ट्रेड चलता कैसे है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन कि हाँ सर कार्गो प्लेन तो किनारा से आती है. तो मैंने भी टैंकर्स पे काम किया था. व्हेन आई हर्ड कि चलो यार कंटेनर्स पे ज़रा जाके देखें, तो जैसे ही पूछा तो कहता है यार प्लान, तो मैंने कहा इसकी प्लानिंग कहता है जो प्लानर बनाता था. आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन. मैंने कहा यार चीफ ऑफिसर को अगर कार्गो प्लानिंग ही नहीं करनी, सारा किनारे वाले कर रहे तो फिर तो काम ही कुछ नहीं. हाँ सर, खुशी हुई होगी सर आपको तो. बट दिस इज नॉट द केस. आज अगर आप मेरे को पूछो, आई विल प्रेफर टैंकर्स देन अ कंटेनर शिप, बेटर क्रूड ऑयल कैरियर्स देन कंटेनर शिप्स. नो 20 पोर्ट्स इन अ मंथ आपकी वैसे ही खटिया खड़ी हो जाती है. सो कंटेनर ट्रेड क्या है, ब्रीफली वी विल आई जस्ट गो थ्रू दिस कि जैसे आपके शिप्स हैं, शिप्स आर डिवाइडेड, दे वर्क ऑन पर्टिकुलर सेक्टर. एग्जांपल बॉम्बे टू यूरोप अगर चलना है तो इस सेक्टर पे जो शिप ओनर है हमेशा 5 या 6 शिप्स चलाएगा एंड एवरी वीकली सर्विस ही विल कीप. सो नॉर्मल योर कंटेनर की अगर जहाँ भी देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड योर वॉयजेज आर अबाउट 40-45 डेज की वॉयजेज रहती हैं, राउंड ट्रिप वॉयजेज. एवरी लाइक एग्जांपल वी टेक से शिप्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप अगर उन्होंने जाना है, every week you have to put a ship in Bombay for the shippers convenience, and then everything is advertised, papers they have their own network जहाँ पे ये सारा का सारा कार्गो की एडवर्टाइजमेंट रहती है कि यस द शिप इज़ लोडिंग इन बॉम्बे, उसका ETA कब होगा, कब उसका डिपार्चर है. देन ऑल द पीपल, हो सकता है few of you also maybe tomorrow become the industrialist and you want to ship your cargo to Europe, so आप भी इसी तरह से उन कार्गोज को देखते रहोगे. एंड देन यू गो टू द एजेंट्स, बेसिकली द बुकिंग एजेंट्स कि भाई मेरे पास आई हैव 10 कंटेनर्स और 20 कंटेनर्स, वेरी गुड, लॉट ऑफ कार्गो. इंडिया इज़ द बिगेस्ट हब नाउ. लुधियाना, इवन अमृतसर, पंजाब साइड से देखिए राइस, आपका राइस सेलर है एंड यू वांट टू सेंड बासमती एवरी वीक 50 कंटेनर्स टू LA, तो आप कॉन्टैक्ट करते हो एजेंट को भी ऐसे ऐसे मेरे पास 50 कंटेनर्स फॉर LA राइस जाना है. सो ही गिव्स यू कि ओके भाई एवरी वीक every Monday there will be a ship loading in Bombay which will be going to LA. तो आप कि उसी तरह से he will provide you the containers, he will give you everything, you stuff the containers and it is taken from your premises. It is a ship owner, he will give you कि okay after stuffing, customs, everything, container is picked up by the ship owner and it is delivered to the consignee in LA. आपको कुछ नहीं करना. He takes it on the truck, trailer, railway, कैसे वो लेके जाता है, everything he pays and then he tells you कि भी इसका freight जो है 4,000 या 5,000 या $3,000 इतने आपने देने. You are happy. आपके प्रोमाइसिस से वो कार्गो उठा, कंसाइनी के प्रोमाइसिस में डिलीवर हो. पहले क्या था कि आपको कार्गो बॉम्बे तक पहुँचाना है, पहले आप ट्रक ढूंढो, फिर रेलवे ढूंढो या कुछ ढूंढो, वो सब आप करो. अब उसने कहा कि नो, व्हाट वन ऑफ यू राइटली सेड, डोर टू डोर. एंड ये सारी जो है जैसे जैसे जो एजेंट्स की जो बुकिंग होती जाती है कि ही हैज़ बुक्ड 50 फ्रॉम अमृतसर, 100 फ्रॉम लुधियाना, सबकी अपनी अपनी इंडस्ट्री है, मे बी फ्रॉम साउथ, समथिंग इज गोइंग फ्रॉम साउथ. सो ऑल दिस बुकिंग्स दे कीप ऑन गोइंग एंड दीज पीपल कीप ट्रांसमिटिंग ऑल दिस डिटेल्स टू अ सेंट्रल प्लानर. अब सेंट्रल प्लानर है, ही most of the time they are also ex sailing officers, second officers, chief officers, they settle ashore, और उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कई बार कि कैसे करना है. अब उसका काम बेसिकली है कि he plans this cargo, he is the person, the planner is the person who actually operates your ship. कौन सी पोर्ट पे जाना है, क्या ETA मेंटेन करना है, बाई चांस डिले होता है तो कौन सी पोर्ट स्किप करनी है,
कौन सा कार्गो ट्रांसशिप करना है, वो सारी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल प्लानर के ऊपर। बंकरिंग कहाँ करनी है, कितना बंकर देना है, क्या करना है। सो इट्स अ गुड लेसन। सो यू बिकम टुमारो चीफ ऑफिसर, एटलीस्ट यू शुड नो योर प्लानर शुड नो यू एंड ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशन। उसको आपने अपना शिप का डेटा देना है। अब वो क्या करता है, उसके पास भी आपकी तरह ही एक थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है। ही कीप्स फीडिंग ऑल दिस डेटा विच इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कि हाँ यार बॉम्बे में लोड होना है, बॉम्बे से शिप ने उसने उसमें कार्गो भरना है। एंड ही कीप्स प्लानिंग नाउ। उसकी प्लानिंग जो है बेसिकली इज द कमर्शियल एस्पेक्ट कि यार पोर्ट रोटेशन, वेट, कैपेसिटी, वो सारा कुछ उसके पास है। एंड जब वो आपका कार्गो हो गया 1 और 2 days बिफोर बुकिंग क्लोजेस, अब ये चीफ ऑफिसर तो काम कर नहीं सकता कि यार लास्ट मिनट तक आप हमें कोई जी 5 कंटेनर और 10 कंटेनर और 25 कंटेनर और, नॉट पॉसिबल फॉर द शिप स्टाफ टू डू। सो दिस इज डन एश्योर एवरीथिंग। एंड देन ये जो प्लान है आपको 1 या 2 दिन पहले शिप में भेज देगी। आजकल मेल के थ्रू आई, आपने अपने लोडिकेटर में लोड की। नाउ व्हाट विल यू सी। अब आपको जब तक उसकी थॉरो नॉलेज नहीं होगी, दैट मीन्स एज गुड एज दैट यू आर अ प्लानर, कि यार ये जो प्लान डाली है उसमें हम क्या क्या फैक्टर्स चेक करेंगे, दैट वी विल स्टडी कि भी दीज आर द फ्यू 10, 12, 15 पॉइंट हैं यार, ये चीज़ भी मैंने देखनी है, ये भी देखनी है, ये भी देखनी है, ये भी देखनी है। वही आपका काम। अब आपने वो सारा चेक कर लिया, कहीं पे आपको गड़बड़ दिखता, हो सकता है आपका ड्राफ्ट ठीक ना आ रहा हो सकता है कहीं स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है कहीं पोर्ट रोटेशन गलत। एंड देन यू मेक इट अ पॉइंट एंड यू पुट इट बैक टू दिस गाय कि भाई ये कंटेनर जो है ठीक नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट द ट्रिम इज़ नॉट कमिंग, दिस लोड लाइन। वो सारा काम आपने देखना कि आपका जहाज़ की वॉयज कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये तो है नहीं कि यू आर पासिंग थ्रू सम विंटर जोन एंड यू लोड अप टू द समर जोन। तो ये सारा आप चेक करके एंड देन यू रिप्लाई बैक एंड वंस यू गिव ओके देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स दिस प्लान टू द टर्मिनल। ये लो भाई बॉम्बे, आपके पास ये 800, 1000, 1200 कंटेनर जो हैं यू विल बी लोडिंग हियर एंड दिस इज द प्लान, दिस इज द प्लेस, दीज आर द बेयर और टीयर्स, और जहाँ जहाँ दीज आर द सेल्स, ये आर द होल्ड्स। यहाँ पे आपने इन रोज पे, इन बेस पे ये काम करना है। फिर जो आपका टर्मिनल प्लानर है बॉम्बे का, ही मेक्स हिज प्लान, बिकॉज टर्मिनल में कंटेनर ये तो है नहीं कि आप ही के कंटेनर ऊपर पड़े हैं, वहाँ तो मे बी 10, 50, 30,000 कंटेनर्स आर लाइंग, हो सकता है कौन सा कंटेनर कहाँ दबा हो तो उसका काम शुरू हो जाता है। फिर ही इंस्ट्रक्ट्स स्टाफ एंड ही ब्रिंग्स आउट, टेक्स आउट ऑल दीज कंटेनर्स, और वो उसी तरह से एक सम का अपोजिट वे में जेटी पे लगा देता है। सो द शिप कम्स एंड देन उनका जो मशीनरी है दे स्टार्ट लिफ्टिंग एंड लोडिंग। उससे पहले वो आपके पास आएगा, ही विल टेक योर अप्रूवल। हो सकता कोई चेंज हो सकता कोई कंटेनर उसको मिल ही नहीं रहा हो तो देन ही से कि ओके, देन ही विल टॉक टू सेंट्रल प्लानर कि भी 2-4 कंटेनर जो आपने किए हैं वो पता नहीं मिल नहीं रहे, फिर चेंजेस हो सकती हैं। सो द टर्मिनल प्लानर कम्स टू द शिप, ही टॉक्स टू चीफ ऑफिसर कि दिस इज द प्लान, ही गिव्स हिज एटनरी, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू लोड। वो सारा डिस्कशन जो है वो आपके साथ होगा एंड यू गिव हिम द अप्रूवल एंड देन लोडिंग डिस्चार्जिंग स्टार्ट्स। तो कार्गो प्लान के लिए आपको भी उतना ही एक्सपर्ट होना है। अब ये तो था, अब सर्टन छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, कई बार आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ये तो था कि बिग जो मेन लाइन शिप चल रहे हैं वहाँ तो चलो प्लानर आ गया। कई बार आई हैव डन मैनी टाइम्स, इवन अलेक्जेंड्रिया कोई है ही नहीं। इंडिया में भी आई थिंक मुंद्रा शुरू में हुआ, या कांडला या दूसरी छोटी छोटी पोर्ट्स थी जहाँ पे, वहाँ पे प्लानर कौन है, वही उन्होंने ऑफिस का बंदा उठाया जिसको ABC भी नहीं पता। उसको ये था कि हाँ यार पोर्ट वाइज कर दें। और चलो आजकल लोडिकेटर है, दैट इज़ वेरी इजी टू, यू आर ऑल कंप्यूटर सावी पीपल, सो इट वोंट टेक टाइम। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। अब जो क्वेश्चन बेस है कि यार जब ये कार्गो वर्क आपने करना है, व्हाट आर फैक्टर्स यू विल वॉच, व्हाट आर थिंग्स यू विल वॉच एंड व्हाट आर प्रिकॉशन यू विल टेक, दैट्स ऑल। ये आपका मेन क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद साथ साथ एक ही नहीं है, बाकी आ जाता है कि यस वी विल स्टडी दिस, आपके स्ट्रेसेस क्या हैं, व्हाट डू यू डिफाइन। जैसे मैंने आपको एक सिंपल बताया है कि आपका टॉर्शनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, विच आर वेरी प्रीडोमिनेंट ऑन दिस कंटेनर शिप्स। व्हाट इज स्टैक वेट, तो अब जिन्होंने टैंकर्स पे काम किया वो यार स्टैक वेट क्या होता है, एंड वेरी इजी। एक बार आपने समझ लिया फिर आपका सिर्फ राइटिंग पावर है
एंटी हीलिंग सिस्टम वो क्या होता है, ये इन्हीं पे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इनफ। आई होप इट वाज ओके। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके अगेन, जिन्होंने जो टैंकर्स वाले हैं जिन्होंने नहीं किया, प्लीज़ फील फ्री, देयर इज नथिंग, कुछ भी छोटी है, इट इज़ अगेन ठीक है। मैंने शिप देखा नहीं तो कोई चीज़ है ओरल्स में, लेट द गाय आस्क यू, लेट द एग्जामिनर आस्क यू, ठीक है यार आपने टैंकर किया, सर पूछिए ना, कंटेनर के बारे में पूछिए, तब क्या कोई पर ऐसे वैसे कोई इसमें अच्छा हो जाता है सर, कंटेनर में पूछेगा तो अच्छा है, थोड़ा बहुत एरर के चांसेस तो भी मान लेते हैं कि नहीं किया तो चलो छोड़ सकते हैं बीच में से, अपने वाले में गलत करेंगे फिर तो और बैंड बन जाएगी। नहीं, ये आपको फीलिंग लगती है। आई हैव सीन दिस की कंटेनर वाले, जैसे एग्जांपल जिन्होंने कंटेनर शिप्स किए थे, उसने कहा अच्छा चलो मैं कंटेनर का ही पूछता, और वो कंटेनर के बारे में पूछा और वो तभी फेल हो गया। तो कह रहा हूँ मैंने ना कहा सर, वही तो है ना सर, दूसरे के रिगार्डिंग पूछेगा तो थोड़े एरर अगर होएगा भी तो वो उसको करेगा कि हाँ चलो इसने किया नहीं है, अपने वाले में पूछेगा उसमें गलत हो जाएगा फिर तो और प्रॉब्लम है ना। यस, अपने आप को भी फीलिंग आती कि यार मैं तो अपने आप को समझ रहा था मेरे को टैंकर का या कंटेनर का सब कुछ आता है, बट ये तो मेरे को इसी ने क्वेश्चन है। बट चलो कोई बात नहीं, टेक्स टाइम, as the time passes, when you start sailing, you start loading the ships and all that. If you ask me today, after this 35-36 years of sailing, you think I also, there may be so many things which I may not know. I cannot say no I know everything, cannot, nobody is Mr. Perfect. So ये चीज़ तो चलती रहती है। तो आजकल तो है कि वो नेट पे कुछ नई चीज़ देखता है तो वो आपको पूछ देता है आके ओरल में, वो भी गलत है कि ये क्या होता है, isn't it? चलो okay dear, then have a good day. So that's all for the day. Okay, thank you, sir. Yeah.